Hello and welcome. Welcome to the third learning session of chapter number 1 of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, these are the topics we have covered so far. First, we looked at what is the meaning of the word gravitation. Then we revised Newton's laws of motion. We looked at Kepler's law for planetary motion. And in the last learning session, we had looked at Newton's universal law of gravitation, which said the gravitational force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two objects. And we had looked at the formula, right? Today, we are going to look at some numerical problems based on gravitational force between two bodies. So our objective will be, students will be able to solve numerical problems based on gravitational force between two bodies. And we are only going to solve 4 problems, okay? 2 solved examples and 2 end of chapter questions. So we'll be only solving 4 questions. And if you just see me, watch me solve the questions, you're not going to get anything out of it. If you just blindly copy whatever is given on the screen, you won't understand anything, you won't gain any skill, you won't achieve this learning objective for it. It is very important that you open your notebooks, be ready with a pen, pencil, scale for this particular learning session, and there are so many calculations that you will have to do by yourself. I'm not going to explain you the calculations, the simple ones to you all, okay? The difficult ones also I'll explain it 1 or 2 times, and the remaining times you have to do the calculations by yourself. And those calculations, they're not difficult calculations, but they need patience, okay? There will be simple multiplication and division, but you will have to be patient enough to solve each and every of that small calculation and get to the correct answer. So that is what I expect of you all for this particular learning session. It is essential, it is important that you open your textbooks before moving ahead. So not textbooks, you open your notebooks before moving ahead. Keep pen, pencil, scale ready, and be ready to make all the calculations by yourself. Be ready to try the problems by yourself whenever I give you all time to pause the video and try the problem by yourself. Only then you will gain something out of this learning session. Okay, with that, let's move ahead. These are the values you need to remember to solve the questions. Okay, first is gravitational constant. We had seen this in the last learning session itself. 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. You also need to remember the unit. Okay, Newton meter square per kg square. In the last learning session, we had also learned how do you derive this unit. Unit कैसे find out करते हैं. So you need to remember this value. Acceleration due to gravity we haven't looked at yet. In the upcoming learning sessions, we will look at acceleration due to gravity, but you all can remember that it is 9.8 meter per second square. Okay, again acceleration है ये, तो उसका unit क्या हो जाएगा, meter per second square. Meter per second is velocity, meter per second square is acceleration. Then mass of earth you need to remember 6 into 10 raised to 24 kg. Radius of earth you need to remember 6.4 into 10 raised to 6 meters. And also notice that all the units are in SI units. Okay, SI units को कैसे याद रखते हैं, MKS. Okay, MKS, M for meters, K for kg, S for second. So हमेशा MKS में तुम्हारे units होने चाहिए. Force SI units में Newton होता है. Okay, so you need to remember these values. Now we can begin with our first problem. So here is the first problem. It's a solved example given on your page, given on page number 6 of your textbook. Okay, so let me read out the problem first. Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? Okay, simple problem hai. What is going to be your first step to solve any problem? The first step is always to write the given, right? So let us start by writing given. So first हम क्या लिखेंगे, distance. Distance is, हम उसको small r ले रहे हैं, कितना दिया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे, राइट, महेंद्र एंड विराट, तो डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया. फिर मास, दो मासेस है, एक महेंद्र का मास है और एक विराट का मास है. महेंद्र का मास 75 केजी, उसको m1 बोल रहे हैं, 75 केजी. विराट का मास 80 केजी, उसको हम m2 बोल रहे हैं. सो मास m2 इज इक्वल टू 80 केजी. ऑल्सो नोटिस हाउ वी आर राइटिंग द यूनिट्स ऑल्सो, हम यूनिट्स भी लिख रहे हैं और वी आर मेकिंग श्योर कि सारे यूनिट्स SI यूनिट्स में, MKS सिस्टम में है. एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, जिसका वैल्यू हमें बाय हार्ट होना चाहिए, वो भी गिवन में लिख दिया हमने. ओके, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू इज ऑलवेज 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप, गिवन लिख दिया.
नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, once we write given we always write to find. क्या फाइंड आउट करने बोला है, what is the gravitational force between them, दोनों के बीच में gravitational force क्या है. So हमें क्या फाइंड आउट करना है, gravitational force, जिसको हम F बोलते हैं, राइट. So now we have written given and to find. Now how will you solve, you have to first think कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. अब तक हमने कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं, which relates m1 mass, m2 mass, gravitational constant g and distance between the two objects and the force, gravitational force. इन सारे quantities को relate करने वाला कौन सा फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ा है, we have studied this formula, right, from universal law of gravitation, right. Force of gravity is equal to g m1 m2 by r square. So here they have written d square in the textbook, right. textbook में जब फॉर्मूला लिखा था हमने, यहाँ पे आर स्क्वायर के यहाँ पे डी स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर यूज करो, डी स्क्वायर यूज करो, बोथ ऑफ देम आर ओके, बट आई सजेस्ट यू यूज आर, क्योंकि अगर तुम 11th-12th में साइंस लोगे या फिर तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, दे आर आल्सो दे यूज आर इंस्टेड ऑफ डी. सो मेक श्योर यू आर यूजिंग आर, ओके. बट इफ यू यूज डी दैट इज आल्सो ओके, रॉन्ग नहीं होगा वो. सो नाउ इट्स क्लियर, राइट. तुम्हें फॉर्मूला पता है, गिवन पता है, टू फाइंड पता है, बस जो कुछ भी गिवन है इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू शुड गेट द आंसर, right. So I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and substitute all of these values in this formula and find the final answer, okay. Okay, I hope you paused the video and at least tried. It's okay if you did not get the correct answer. When we'll discuss the correct solution, you will rectify your mistakes, you will improve on your mistakes, right. So it's okay if you did not get the correct answer, but at least you tried, and that is going to give you some insight कि अगली बार कैसे सही करना है. Okay, now let us see the calculations. So you'll write calculation and you'll say from formula F is equal to, यहाँ पे देखो G है, तो G का वैल्यू क्या है, 6.67 into 10 raised to minus 11. तो यहाँ पे लिख दिया 6.67 into 10 raised to minus 11. फिर M1 into M2, M1 है 75, M2 है 80, तो 75 into 80 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, राइट. नाउ यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 11 है, उसका 10 रेज टू माइनस 7 हो गया, ये कैसे हुआ. सो फर्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू इज इसको इग्नोर कर लो, 10 रेज टू माइनस 11 को इग्नोर कर लो. क्या तुम्हारे पास 6.67 है, 75 है एंड 80 है. सो यू मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स, 6.67 into 75 into 80, what will you get, you will get 40,000 something. Okay, so you'll get this number, 40,020 into 10 raised to minus 11. 6.67 into 75 into 80 will give you 40,020. now 40,020 into 10 raised to minus 11 से तुम्हें ये फाइनल आंसर कैसे मिलता है. So उसके लिए थोड़ा सा algebra यूज करना पड़ेगा. सी 10 रेज टू माइनस 11 को तुम स्प्लिट कर सकते हो. 10 रेज टू माइनस 11 का मीनिंग क्या है कि ये 40,020 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 11 है. ओके, ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10 रेज टू 11 हो जाएगा, न्यूमरेटर में है इसलिए 10 रेज टू माइनस 11 है, यानी ये 10 1 के बाद 11 जीरोस इस नंबर से डिवाइड करना है. सो इस 10 रेज टू माइनस 11 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ. ओके, 10 रेज टू माइनस 7 एंड 10 रेज टू माइनस 4. कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, सी जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके, दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब उनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं. दिस कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ इंडाइसिस व्हिच यू मस्ट हैव स्टडीड इन से लास्ट प्रीवियस ग्रेड, नॉट प्रीवियस ग्रेड, इनफैक्ट तुमने 7th या 8th ग्रेड में ये पढ़ा होगा, इंडाइसिस ये चैप्टर में. ओके, सो व्हेन टू सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड यू कैन ऐड देयर पावर्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल 10 into 10, 10 into 10 को 10 स्क्वायर कैसे लिखते हो तुम, क्योंकि 10 रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 1, दोनों का 1 है, 1 plus 1 2 हो जाता है, इसलिए वो 10 into 10 10 स्क्वायर हो जाता है, राइट, समथिंग लाइक दैट. सो एंड इफ यू वांट यू कैन चेक, देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम उसके पावर्स को ऐड कर सकते हो, राइट. तो -7 -4 क्या हो जाएगा, -7 -4 इज -11. सो तुम्हें इसको सॉल्व करके ऊपर वाला नंबर आ रहा है. सो दिस इज करेक्ट. नाउ 10 रेज टू -4 मतलब क्या, डिवाइड बाय 10 रेज टू 4, isn't it. ये जो 10 रेज टू 4 है ये न्यूमरेटर में जाता है तो -4 हो जाता है. तो 10 रेज टू -4 को डिनोमिनेटर में लिख दिया तो 10 रेज टू 4 हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट 10 रेज टू 4 मतलब क्या बोला था मैंने, 1 के बाद 4 जीरोस. सो 1 के बाद 4 जीरोस इस नंबर से डिवाइड करना है तुम्हें. तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, जब भी तुम 10 100 1000 10,000 से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें बस एक पॉइंट लगाना होता है. ओके, बट कहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ से शुरुआत करनी है. ओके, एट द राइट मोस्ट, तुम्हारा जो लास्ट नंबर है उसके बाद
लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट जो है तुम्हारा, उसके बाद पॉइंट डाल दो. ओके, वंस यू पुट योर पॉइंट देयर, देन कीप शिफ्टिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. कितनी बार शिफ्ट करोगे? जितने जीरोज है, तो 4 जीरोज है, सो यू विल शिफ्ट इट 4 टाइम्स. तो पहले पॉइंट यहाँ पे रख दो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम्स यू विल शिफ्ट. तो तुम्हें क्या मिल गया? 4.0020. ओके, so your answer is 4.0020 into 10 raised to minus 7. That's how you solve this. I mean, intermediate steps दिए नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, that you have to do by yourself. And 6.67 into 75 into 80 ये भी तुम्हें खुद से सॉल्व करना है. मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, you should be able to do it by yourself. तुम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हो. Okay, so I'm going to quickly revise this. ये 10⁻4 से क्यों डिवाइड किया वो लोग ने? 10⁻4 को स्प्लिट क्यों किया? 10⁻5 भी स्प्लिट कर सकते थे, 10⁻3 को भी बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि जनरली इन फिजिक्स दे लाइक टू कीप पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट. तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना उनको अच्छा लगता है, फिजिसिस्ट को, या फिजिक्स में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को, फिजिक्स के साइंटिस्ट को. इसलिए वो लोग ने 4 जीरोस को बाहर निकाल दिया. ओके, सो हम लोग क्विकली रिवाइज ये कैसे किया है. ये तुम्हें 6.67 इंटू 75 इंटू 80 40,020 मिल जाएगा, इंटू 10⁻11 जो यहाँ से लिखा था सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है. विद 10⁻11 को स्प्लिट कर लो, कुछ जीरोस बाहर निकालो. तो हमने 4 जीरोस निकाले, क्यों? क्योंकि 4 के बाद 4 डिजिट्स है, इसलिए 4 जीरोस बाहर निकाल दिए. चेक कैसे करोगे तुमने सही लिखा है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करो, -7 -4, यू आर गेटिंग -11. सो तुमने सही लिखा है. सो -4 को डिनोमिनेटर में ले लो तो 10⁻4 हो जाएगा. 10⁻4 यानी 1 के बाद 4 जीरोस, 1 के बाद 4 जीरो. इतने बड़े नंबर से जब डिवाइड करोगे तो कैसे करना है? लास्ट डिजिट के राइट साइड में पॉइंट डाल दो, और जितने जीरोस है उतनी बार पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो. सो यहाँ से एक बार शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट किया, 3 बार शिफ्ट किया, 4 बार शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोस है. तुम्हें क्या आंसर मिला? 4.0020 इंटू 10⁻⁷. यहाँ पे 2 के बाद जीरो नहीं लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. 1.2 लिखो या 1.20 लिखो या 1.200 लिखो, ऑल ऑफ देम आर सेम. पॉइंट के बाद कितना भी जीरोस ऐड करो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, राइट? So they have put 4.002 into 10⁻⁷ Newton. And see, they have written the unit correctly. SI units में force का unit क्या होता है? Newton. So that's your final answer. If you are unable to solve the sum completely by yourself, if you are unable to do the calculations correctly, it's okay. But now you know कि तुमने कहाँ पे गलती किया. Okay, and from next time onwards you can improve, you can avoid the same mistake. Okay, is our sum done over here? हमारा सम कंप्लीट हो गया क्या? The answer is no. फाइनल आंसर नहीं लिखा है. सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है और पेंसिल बॉक्स में डालना. The gravitational force between Mahindra and Virat is 4.002 into 10⁻⁷ newtons. And you will put this in pencil box. Now your sum is over. So you're done with our first solved example. Okay, on all these calculation you have to do by yourself. Let's move ahead. Second question. This is again a solved example given on page number 7 of your textbook. Calculate the gravitational force due to Earth on Mahindra in earlier example. Okay, पहले वाले example में अर्थ के वजह से महिंद्रा के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है. ओके, सो पिछला वाला एग्जांपल यहाँ पे है. Just put copy pasted the same question over here so that you get the information from here as well. राइट? सो क्योंकि तुम्हें महिंद्रा का वेट लगने वाला है, महिंद्रा का वेट तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज तुम्हें उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है. राइट? सो अगेन द सेम थिंग यू वांट टू डू. फर्स्ट राइट गिवन, राइट टू फाइंड एंड राइट formula. I'll wait for you to do those 3 steps first and then we will cross check. Okay, okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and have written given, to find and formula. See, once you're able to write given, to find and formula correctly, फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गया, वो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता. these 3 steps are the most important steps of any sum. Okay, so first let us write given. So given में मास ऑफ अर्थ लिखा है. क्यों मास ऑफ अर्थ लिखा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ हमें फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ अर्थ लगने वाला है हमें, और वो तुम्हें बाय हार्ट करना है. वो क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, वो तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा. रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन महिंद्रा एंड सेंटर ऑफ अर्थ निकालना पड़ेगा. राइट? यू रिमेम्बर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए उनका सेंटर लेते हैं, तो अर्थ का सेंटर से तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा महिंद्रा का. ओके,
सो रेडियस ऑफ अर्थ लिख दिया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, जो तुम्हें बाय हार्ट करना है. अगेन इट मे और मे नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन. फिर महेंद्र का मास लेगा कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें फाइंड आउट करना है, विच इज 75 डिग्री, सॉरी 75 kgs, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तुम्हें लगेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. टू फाइंड, क्या है टू फाइंड? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र. सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड. ग्रेविटेशनल फोर्स exactly same in as our previous case. पहले gravitational force between Mahindra and Virat पूछा था, अभी gravitational force between Mahindra and Earth पूछा. Okay, that's the only difference. Which formula will you use? You'll use the same formula. F is equal to G m1 m2 by r square. Okay. So again, what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video. You'll know what is given in the question. You'll know what is to be found. तुम्हें formula भी पता है, बस इन values को तुम्हें substitute करना है और तुम्हें final answer calculate करना है. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and do the calculations by yourself. It is okay if you don't get the correct answer. It's okay if you're unable to solve the entire sum correctly. If you are able to solve it correctly, तुम्हारा confidence increase होने वाला है. If you're unable to solve it correctly and then you play the video and see where you went wrong, अगली बार से वो same mistake you will not repeat and you will gain something out of it. You learn something new about your skills. Okay, so I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and at least try to calculate the final answer. Okay, so let us see the calculation now. So here's the calculation. First you will substitute, right? F is equal to G, यहाँ पे G दिया, G का वैल्यू 6.67 into 10⁻11, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. M1 की जगह पे 75 ले लिया. ओके, M1 क्या है? M1 हमारा मास ऑफ अर्थ है, राइट? 6 into 10⁻24, उसको यहाँ पे ले लिया. फिर M2 कहाँ कितना है? 75, उसको यहाँ पे लिख दिया. ओके, 6 into 10⁻24 पहले लिख सकते हो, 75 को बाद में लिख सकते हो. इट्स द सेम थिंग. एंड में सबको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 3 करो या फिर 3 into 2 करो, दोनों का आंसर 6 आने वाला है, राइट? तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो. बस बात है कि इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें. ओके, नेक्स्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर. आर क्या है तुम्हारा? 6.4 into 10⁻6. सो इसको यहाँ पे लिख दिया. एंड अगेन सी हाउ एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स में MKS, मीटर, kg, सेकेंड्स. तो सब कुछ SI यूनिट्स में वो चेक करना है. अगर तुम फॉर्मूला में कुछ सब्स्टिट्यूट करो, एवरीथिंग हैज टू बी इन SI यूनिट्स. कोई भी एक CGS यूनिट में हो गया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा. ओके, एवरीथिंग हैज टू बी इन SI यूनिट्स. आइदर एवरीथिंग हैज टू बी इन SI यूनिट्स और एवरीथिंग हैज टू बी इन CGS यूनिट्स. एक CGS यूनिट में लिया है, एक SI यूनिट्स में लिया है, तो आंसर गलत आएगा. ओके, एंड वी जनरली प्रीफर SI यूनिट्स. ओके, सो हियर यू कैन सी 6.67 को यहाँ पे लिख दिया, 75 को यहाँ पे लिख दिया, 6 को यहाँ पे लिख दिया. सिमिलरली 6.4 का स्क्वायर है, तो 6.4 इंटू 6.4 यहाँ पे लिख दिया. बट यहाँ पे जो 10⁻11 है, 10⁻24 है, एंड यहाँ पे 10⁻6 का स्क्वायर है, उसके यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है. ये कैसे आया? ओके, तो सबसे पहली बात ये 10⁻6 की बात करते हैं. 10⁻6 का स्क्वायर है, तो 6 into 2 हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे 10⁻12 आ जाएगा. तो 6.4 into 6.4 into 10⁻12 आ जाएगा. बट ये सब गायब कहाँ पे हुआ? 10⁻11, 10⁻24 एंड 10⁻12, ये सब कहाँ पे गायब हुआ? लेट अस सी दैट कैलकुलेशन. ओके, सो हियर इज द कैलकुलेशन. तुम्हारे पास है 10⁻11 यहाँ से, 10⁻24 यहाँ से, एंड डिवाइड बाय 10⁻12 यहाँ से. 6 2 सा. ओके, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? मैंने क्या बोला था? अगर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो उनके पावर्स को तुम ऐड कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 into 10, तो तुम पावर्स को ऐड कर दो. ओके, सो यहाँ पे -11 + 24, 10⁻11 + 24. अब ये 10 नीचे डिनोमिनेटर में, राइट? 10⁻12. ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻−12 हो जाएगा. And this 10⁻12 goes in the numerator, it will become 10⁻−12. तो इसलिए मैंने -12 को भी यहाँ पे ऐड कर दिया. ओके, सो -11 यहाँ से, +24 यहाँ से, एंड -12, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस लिया है, -12 यहाँ पे. सबका बेस क्या है? 10. सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, सेम नंबर डिवाइड हो जाए, ओनली देन यू कैन डू दिस. ओके, समझो यहाँ पे 10⁻−11 और यहाँ पे 20⁻24 है, तो नहीं कर सकते. सेम नंबर होना चाहिए बेस में और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए. ओनली देन you can add their powers. Okay, so now calculate this. -11 + 24 -12, that comes to 1. So इसलिए यहाँ पे 10⁻1 लिखा है. Okay,
ये सब कुछ कैंसिल होके सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके 10⁻1 आ जाता है. सो 10⁻1 किया. Now remaining calculation you have to do by yourself. 6.67 multiply by 75 multiply by 6 divide by 6.4 divide by 6.4. All that calculation I'm leaving up to you. I'm not going to do that calculation for you because this simple multiplication and division वो तुम्हें खुद से आना चाहिए. You're in grade 10 and do not directly copy this in your notebook. Okay, इसके बाद directly ये step मत copy करो अपने notebook. I should be able to see all the calculation in the rough column when you submit your notes. Only then this is going to make sense. अगर तुमने अभी copy कर लिया एग्जाम में नहीं कर पाओगे calculations. So अभी patiently it will take some time and धीरे धीरे तुम्हारा speed बढ़ेगा. But use that time, use that patience, develop that patience and solve it completely. And जब तुम्हें आंसर आ जाता है 733 only then you write the final answer. Okay. So is our sum done? Sum solve करके हो गया? The answer is no. Final answer अभी तक नहीं लिखा. Right? So what will be the final answer? The gravitational force due to the Earth on Mahindra is 733 newtons. Okay? Now let us compare. देखो महिंद्रा और विराट 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे तो क्या फोर्स लगा था? Let me go back. कितना फोर्स लगा था? 4 into 10⁻⁻7. राइट? यानी 4 डिवाइडेड बाय 10000 ऐसे 7 zeros. तो 0 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 7 zeros लेंगे फिर 4 आएगा. इतना छोटा नंबर है. 0.00000004 इतना छोटा नंबर है. सो ये बहुत ही छोटा नंबर है. क्यों? क्योंकि 4 को हम 10⁻7 से डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज अ एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर. इतना छोटा है. और ये क्या है? कौन सा नंबर है? महेंद्र और विराट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरएस महेंद्र एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? इट इज 733 न्यूटन. तो देखो कितना फर्क है. अर्थ एंड एक the gravitational force between a person and the earth is 733, whereas the gravitational force between two people besides each other वो कितना है? 0.00000004. इतना छोटा है. So hence gravity between earth and people is so much कि gravity between two people काफी negligible होता है. हमें वो force feel भी नहीं होता. इतना कम force होता है. इसलिए हम लोग एक दूसरे को attract नहीं होते. Okay, so we're also done with the second question. Third question for the day, end of chapter, question number 5F given on page number 15. Now you all are going to solve this by yourself. Okay, try to solve this by yourself. Write given, to find and formula first. I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and are ready with given, to find and formula. So the masses of the earth and moon are given 6 into 10⁻24 kg and 7.4 into 10⁻22 kg. Okay. तो गिवन में सबसे पहली बात मास ऑफ अर्थ लिख दो 6 into 10⁻24 kg. मास ऑफ मून लिख दो 7.4 into 10⁻22 kg. फिर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर. तो इसको यहाँ पे लिख दो. बट मैंने क्या बोला था? हमेशा तुम्हें सब्स्टिट्यूट किस में करना है? एसआई यूनिट्स में. इस किलोमीटर एसआई यूनिट? नो. एसआई यूनिट में MKS होता है. M फॉर मीटर. तो मीटर होना चाहिए, किलोमीटर नहीं होना चाहिए. राइट? सो तुम्हें किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. राइट? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 10⁻3. राइट? 1000 में 1 के बाद 3 जीरो होते, तो 10⁻3. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 आ जाएगा. सो 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे. 5 + 3, 5 + 3 8 आ जाएगा. So you have 3.84 into 10⁻8 meter distance between Earth and Moon. तो उसने गिवन में ही SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ ना हो जाए. ओके, सो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. एंड फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जी का वैल्यू, वो भी यहाँ पे लिख दिया गिवन में. क्या कैलकुलेट करने बोला है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. यू हैव सॉल्व सो मेनी सम्स व्हिच आर सो सिमिलर टू दिस वन. राइट? पिछले दो सम्स की तरह ही है. सो टू फाइंड में लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला में लिखोगे F is equal to G m1 m2 by r square. Now you start substituting. So now you know mass of earth. I mean तुम्हें सारे values पता है. तुम्हें G पता है, m1 पता है, m2 पता है, r square पता है. Now substitute and try to find the final answer. I'll wait again for 5 seconds for you to pause the video and find the final answer. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and were able to
find the final answer. If you are not able to find the final answer correctly, that's okay. We'll see where the mistake was. Okay, so let us first substitute. So ये हमारा सॉरी ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा. सो जी के यहाँ पे 6.7 इंटू 10⁻⁻11. नेक्स्ट M1 यहाँ पे वो लोग ने मास ऑफ अर्थ ले लिया 6 इंटू 10⁻24, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24. देन M2 को उन्होंने मास ऑफ मून ले लिया है 7.4 इंटू 10⁻22, तो यहाँ पे 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R क्या है? डिस्टेंस, विच इज 3.84 इंटू 10⁻8. देखो 10⁻5 नहीं लेना क्योंकि वो किलोमीटर्स में, हमें SI यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करना है, तो मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करना है. 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर्स, तो यहाँ पे आ गया एंड इसका स्क्वायर, राइट, R स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर आ गया. तो 6.7 वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया, 6 को वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया, 7.4 को वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया. ओके, एंड 3.84 का स्क्वायर है, सो 3.84 इंटू 3.84. Now let us see how to calculate, how to simplify the 10 the terms which are 10 and their powers. Okay, 10⁻⁻11 minus 11 plus 24 minus 11 plus 24 plus 22 कितना हो जाएगा? सो माइनस 11 प्लस 22 कितना हो जाएगा? माइनस नहीं प्लस 11 हो जाएगा. माइनस 11 प्लस 22 प्लस 11 हो जाएगा. देन 24 प्लस 11 प्लस 24 कितना हो गया? प्लस 11 प्लस 24 विल बिकम 35, राइट, दे विल बिकम 35. और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 10⁻8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 16 हो जाएगा. सो 35 एंड यहाँ पे 10⁻16, 35 माइनस 16, 10⁻35 माइनस 10⁻35 माइनस 16, वो तुम्हें 10⁻19 आ जाएगा. यू कैन डू दैट कैलकुलेशन जैसे मैंने पिछली बार किया था. उसको तुम अलग से रफ कॉलम में भी कर सकते हो. ओके, सो यू फाइंड यू इन रफ कॉलम यू हैव टू जस्ट डू minus 11 plus 24 minus 22 minus 16 and you should get 90. So तुम्हें 10⁻19 आ जाएगा. This calculation you have to do by yourself. Okay, 6.7 into 6 into 7.4 divided by 3.84 divided by 3.84. ये calculation तुम्हें खुद से करना है. And you should get the answer as 2 into 10⁻20. Okay, so your final answer will be the gravitational force between Earth and Moon is 2 into 10⁻20 newtons. Okay, so एक person महिंद्रा का हमने एग्जांपल लिया, राइट. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ पर्सन इज 733, बट अर्थ एंड मून के बीच में कितना है? 2 इंटू 10⁻20. 2 के बाद 20 जीरोस, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन मून एंड अर्थ. एंड पर्सन एंड एन अर्थ, उसके बीच में कितना होता है? 700 से लेके 1000 न्यूटन के बीच में होगा. मोस्टली 700 न्यूटन के आसपास ही होगा वो. ओके, सो उतना फर्क होता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ इज 2 के बाद 20 जीरोस, इतना बड़ा नंबर, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. इसके वजह से टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में. ओके, सो दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस end of chapter question 5G given on page number 15. Okay, again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and write given, to find and formula. Okay, I hope you are done writing given, to find and formula. Let us cross check now. Let us discuss. So the mass of Earth is 6.10⁻24 kg. The distance between Earth and Sun is 1.5 into 10⁻11 meters. तो पहले उन दोनों को given में लिख दो. Mass of Earth लिख दो 6 into 10⁻24. फिर बाद में distance लिख दिया R 1.5 into 10⁻11 meters. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 newtons. So यहाँ पे gravitational force लिख दिया 3.5 into 10⁻22 newtons. What is the mass of Sun? तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा क्या है? मास ऑफ सन पूछा. जी का वैल्यू दे दिया, उसको भी इसमें यहाँ पे गिवन में लिख दिया. सो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी दे दिया एंड तुम्हें एक ऑब्जेक्ट का मास पूछा. राइट, सो व्हाट यू नो व्हाट टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड मास, बट फॉर्मूला सेम रहेगा. अब तक हमने एक ही मेजर फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला रहेगा. नाउ अगेन यू ऑल नो व्हाट टू डू. तुम्हें जी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है. m1 को मास ऑफ अर्थ ले लो, m2 को मास ऑफ सन ले लो. आर स्क्वायर भी तुम्हें पता है, यहां से मिल जाएगा. एफ का वैल्यू भी तुम्हें पता है 3.5 into 10⁻22. तो बस मास ऑफ सन नहीं पता, बाकी सब पता है तुम्हें. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड आउट कर लो. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सम बाय योरसेल्फ. ओके,
Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and at least try to solve this sum by yourself. If you are unable to solve it by yourself, it is okay. We'll discuss the correct answer now. Okay, you don't have to give up. See, many times what happens is these types of sums जहाँ पे बहुत ज्यादा calculations होते हैं, first try में नहीं आता correct answer. Okay, you need lot of practice. Only when you do lot of practice, then only you will start getting accurate answers in the first attempt. But generally इसमें first attempt में answers नहीं आते. You have to practice again and again, find out कहाँ कहाँ पे common mistakes हो रहे हैं, उनको improve करके ही final board exam में तुम्हें correct answers मिलेंगे first attempt में. Okay, so it's okay if you don't find the final answer in the first attempt. It's okay. सबके साथ होता है. The more you practice, the better you will get at it. Okay. So let us substitute now. So यहाँ पे हम क्या कर लिया, वो लोग ने मास ऑफ सन को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले लिया. ओके, सो समझो m1 तुम्हारा मास ऑफ सन है, तो यहाँ पे f है, r स्क्वायर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर on the right hand side r square is in the denominator, left hand side में जाके वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. Similarly g here is in the numerator, left hand side में जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. m1 यहाँ पे रख दो, m2 को लेफ्ट साइड लेके जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट. सो व्हाट यू विल गेट इज m1 is equal to f into r square divided by g into m2. ओके, यही किया, f into r square divided by g into m2. m2 को वो लोग ने मास ऑफ अर्थ ले लिया. नाउ यू सब्स्टिट्यूट f का वैल्यू 3.5 10 raised to 22, ये यहाँ पे लिख दिया. r square, r is where r is here, 1.5 into 10 raised to 11 meters. तो 1.5 into 10 raised to 11 squared, क्योंकि r का squared है. ओके, नेक्स्ट g का वैल्यू है 6.7 into 10 raised to minus 11, 6.7 into 10 raised to minus 11. एंड मास ऑफ अर्थ यहाँ पे दिया 6 into 10 raised to 24 kgs. अगेन मेक श्योर whatever you're substituting, everything is in SI units, MKS, meters, kg, seconds, उसमें ही होना चाहिए. फोर्स के लिए न्यूटन में होना चाहिए. अगर वो यूनिट्स में नहीं है, पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा और फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है. दैट आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. सो अगेन 11 into 2, 11 into 2 क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22. सो 22 plus 22, यहाँ पे 44 मिल गया. नीचे minus 11 plus 24, minus 11 plus 24 will give you minus plus 13. So यहाँ पे 10 raised to 13 हो गया. Plus 24 minus 11 13, 22 plus 22 44 हो गया. 3.5 into 1.5, that will give you 7.88. 6.7 into 6 will give you 40.2. Now this you have to divide by yourself. खुद से डिवाइड कर लो. यहाँ पे 44 minus 13 आ जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइड कर लो एंड एडजस्ट कर लो पॉइंट्स को सच दैट फर्स्ट डिजिट के बाद तुम्हारा पॉइंट आ रहा है. ओके, समझो इसको तुमने लिख दिया 19.6 into 10 raised to 19.6 into 10 raised to 29 kg. That is also okay. Okay, 19, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 minus 13 कितना, 44 minus 13 कितना आएगा, 31 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे तुम्हें अगर 0.196 into 10 raised to 31 kg लिखा, दैट इज ऑल्सो ओके, रॉन्ग नहीं होगा. ओके, बट ट्राई टू एडजस्ट योर 10 का पावर सच दैट कि फर्स्ट डिजिट के बाद तुम्हारा पॉइंट आ रहा है. दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी रिटन इन साइंटिफिक लैंग्वेज. ओके, सो दैट्स योर फाइनल आंसर. यू कैन ट्राई टू सी, आई मीन यू हैव टू सी कि 7.88 को 40.2 से डिवाइड करके तुम्हें 1.96 नहीं आएगा, आई थिंक 0.196 आएगा, वो आ रहा है कि नहीं, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. द सिंपल डिवीजन, this you only have to do this. I won't help you with that. Simple division, have some patience and you will get the answer as 0.196. okay, so your final answer will be the mass of sun is 1.96 into 10 raised to 30 kg, and that's your final answer. So we are done for the day. We're done with the learning session. We have seen 4 problems based on gravitational force. Okay, and hence gravity is a complicated chapter. ग्रेविटी, जब चैप्टर का नाम सुनते लगता है बहुत इजी होगा, ग्रेविटी मतलब क्या, सब कुछ नीचे आएगा, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. उसका मैथमेटिक्स काफी रिगरस है, काफी चैलेंजिंग है, एंड हेंस न्यूटन इज कंसिडर्ड टू बी सच अ ग्रेट साइंटिस्ट. व्हाई? बिकॉज इसने इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को सॉल्व करके ये सब फॉर्मुलेट किया. ओके, सो इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, एंड द मोर मैथमेटिक्स यू अंडरस्टैंड, द बेटर यू आर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. उसका एक बेटर आइडिया तुम्हें मिल रहा है, बिकॉज यू नो उसका मैथमेटिक्स तुम्हें कैसे सॉल्व कर रहा है. Okay, so that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not.
students will be able to solve numerical problems based on gravitational force between two bodies. So if I give you a very similar problem, numerical problem, will you be able to solve it? If yes, then you have accomplished today's learning session. If not, you need some more practice. Okay, so make sure you're practicing 2-3 times the same problems you practice without seeing. I think that will also help, and then you can try to solve some new problems. Okay, but if the same sums without seeing, if you practice 2-3 times, that will also help you a lot. Okay, so just check whether you have accomplished today's learning objective or not. And that is it for this learning session. I hope you understood everything, and I hope you got a little more context कि gravity का magnitude कितना है, कि इंसान और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटी होता है 700 के आसपास, अर्थ और सॉरी दो इंसान के बीच में कितना ग्रेविटी होता है, बहुत ही कम होता है, 0.00000004 के आसपास. अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटी होता है. सो ऑल दीज वैल्यूज, यानी वैल्यूज तो बाय हार्ट नहीं होनी चाहिए, बट कितना ज्यादा है कितना कम है उसका तुम्हें थोड़ा आज आइडिया लग गया होगा. ओके, बिकॉज वी वर सीइंग राइट, इट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पीपल इज वेरी स्मॉल. How much small? That you understood from these examples. Okay, so I hope you understood everything. I hope you feel a little more confident in solving these numerical sums, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and peace.